Hello everyone, my name is Mayank Jhunjhunwala and I am a BTech student here at IIT Kanpur. So I am currently pursuing my mechanical engineering from here. So today we are going to discuss chapter vector algebra from NCRT. It's chapter 10, mathematics. We have already started this chapter in our previous lectures and I think now we can continue with that further. See, we have done what is vector and all. Like vector is something which we define with both magnitude and direction. So if there's something where direction is also involved, we call it a vector. Then how to take the magnitude is under root of x square plus y square plus z square. All this stuff we have already discussed. Then coming to next, this one is also discussed how we add vectors, how we subtract them, and so on. Then what are components of vector? We take a vector and then take its components along I, j, and k cap. I represents x-axis, j represents y-axis, and k represents z-axis, and then we move further. So this is something which is easy sort of. Moving ahead, suction formula and all are the same as we read in 2D geometry. Then yesterday we started product of vectors where we read what is scalar product or dot product, which is represented by a dot b, which is nothing but equal to mod a mod b cos theta. Okay, so this is the cases which we have studied yesterday. Now then its main application is the projection of the vector on a line, which we define by a dot b divided by mod b. Okay, so these all we have studied. Moving ahead. Here exercise 10.3 we have started and done till question number 14, I guess. So let's start with question number 15th. Question number 15th. Okay. If vertices A, B and C of a triangle ABC are this and this, then find angle ABC. अपने को एंगल एबीसी बताना, तो बेसिकली अपने को अगर अब मैं एंगल एबीसी बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? आई विल मेक इट समथिंग लाइक दैट. ठीक है, से इट इज ए, it is B, and it is C. Then I have to calculate this angle. So see, if I will calculate this vector and I will calculate this vector and then take dot product of this and compute the cost of the component, then I can easily get the value of this theta angle. ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा. तो बेसिकली मेरे को ये वाला वेक्टर ये वाला वेक्टर निकालना है. ठीक है, तो व्हाट इज ए बी वेक्टर? ए बी वेक्टर क्या होगा? ए बी वेक्टर हो जाएगा, देखो ए बी वेक्टर हो जाएगा बी माइनस ए. ठीक है, एक्चुअली मुझे ए बी नहीं बी ए निकालना पड़ेगा क्योंकि मेरे को ये एंगल चाहिए ना. तो एक्चुअली में ए बी से काम चलेगा, बी ए से काम चलेगा क्योंकि हमें दोनों की खेल जुड़ी होनी चाहिए. तो बेसिकली ए बी नहीं, मेरे को बी ए निकालना पड़ेगा. लेट्स कंप्यूट बी ए वेक्टर, which is nothing but components of A minus components of B. So this thing is equal to yes, this one. So minus 1 minus 2, it will be minus 2 I cap, minus 2 I cap, then minus 2 I cap, then 0 minus 2 is again minus 2. So minus 2 j cap, then 0 minus 3 is minus 3 k cap. Okay, so this we have done. Now this is B A vector. Now computing the CB vector, BC vector, sorry, BC vector. What we will do? We will set is equal to C components minus BK components, that is equal to 0 minus minus 1 is 1. So 1 I cap, then 1 minus 0 is 1, so plus j cap, then 2 minus 0 is 2, so plus 2k cap. Okay, now we have to compute the angle between them. We can easily compute using the cos theta thing.
So cos theta is equal to a dot b, which is -2 -6. That is equal to -10. I have just done a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 divided by mod a mod b. So इसका mod कितना आएगा? 4 plus 4 plus 9, that is equal to √17. इसका कितना आएगा? 1 plus 1 plus 4, that is equal to √6. Okay. So this is the angle. So theta is equal to cos inverse -10 upon this thing is how much? 102. Okay. So this is my answer for the angle between these two vectors. Basically मैंने क्या किया, मेरे को जो दो एंगल ABC निकाला तो मैंने ABC बनाया, फिर मेरे को निकालना पड़ा कि मेरे को AB वेक्टर और CB वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए, मतलब BA वेक्टर और BC वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए। तो मैंने BA वेक्टर लिखा, मतलब A माइनस B करके और C माइनस B करके दोनों वेक्टर लिखे, cos थीटा निकाल लिया। A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 किया मैंने, -10 आ गया। इसका mod हो जाएगा 4 plus 4 plus 9 √17, and then 1 plus 1 plus 4, it is √6. So basically I have computed theta in this way. ठीक है, आगे चलते हैं। मयंक, यस सर। कल ना 14 नंबर शायद क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया था, रिमेनिंग है 14 नहीं नंबर। सर 14 तो हो गया था। ओ सर 13 छोड़ा था, ठीक है मैं 13 कर लूंगा। एक क्वेश्चन शायद छोड़ा था 13 या 14। हाँ 13 छोड़ा था अब। अच्छा ओके, हाँ ठीक है। So we have done till question number 15th. Now let's move to question number 16th. Show that the points A, B and C are collinear. अपने को कोलिनियर बताना है, तो कोलिनियर कैसे बताएंगे? कोलिनियर तब हो जाएंगे जब उन दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर एंगल 0 हो जाएगा तो ये दोनों आपस में कोलिनियर होंगे। तो cos 0 क्या होता है? cos 0 होता है 1। तो इन दोनों के बीच में मैं कोई भी दो वेक्टर उठा लेता हूँ, ए बी और बी सी मैंने उठा लिया और फिर दोनों के बीच में मैंने एंगल निकाल लिया। एंगल का cos कितना आएगा? cos 0 होता है 1। तो अगर cos थीटा 1 आ रहा है तब तो अपन लोग शो कर देंगे कि these three points are lying on a straight line and they're collinear, otherwise not. ठीक है, so let's do that. फर्स्टली कैलकुलेट। अब तो इसमें आप कुछ भी ले सकते हो। अपना cos थीटा बेसिकली क्या आएगा? 1 या -1, क्योंकि -180 भी हो सकता है ना, वो 180 भी हो सकता है। इसलिए देखो लाइन में क्या है, ए बी बी सी, तो हो सकता है मेरा ये वेक्टर ऐसा हो और ये ऐसा हो तो 1 किया जाएगा, और ये भी ऐसा हो ये भी ऐसा हो तो 0 डिग्री आ जाएगा। तो बेसिकली उससे मतलब नहीं है। अपना जो ए बी अपना जो एंगल है वो 1 या -1 आना चाहिए। अगर 1 और -1 आ रहा है देन तो वी कैन इजीली से दैट इट इज कोलिनियर, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो ए बी में क्या करेंगे? 2 - 1 मतलब आई कैप, देन 2 - 1 आई कैप, देन 6 - 2 4 जे कैप, 4 j cap, then 3 - 7 -4 k cap. Okay, so this is the AB vector. Then let's compute BC vector. So BC vector is nothing but C minus B, that is equal to 3 - 2 is I cap, 3 - 2 is I cap, then 10 - 6 is 4 j cap. See, it is coming out to be same. Then -1 - 3 is -4 k cap. तो अब तो आपको दिखेगा वो इन दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो ये cos थीटा निकालने का मतलब ही नहीं बनता। फिर भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ, लेकिन cos थीटा 1 आएगा क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं, hence they are collinear। ठीक है, तो cos थीटा क्या होगा? a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 divided by mod a mod b। तो a1 b1 1 प्लस 16 - 16, नहीं प्लस 16 प्लस 16 माइनस माइनस है ना, तो बेसिकली आ जाएगा 16 + 16 32 प्लस 1 33। ऊपर आ जाएगा 33 और नीचे कितना आ रहा है? 16 + 4 स्क्वायर 16 + 4 स्क्वायर 16 + 1 √33। इसका भी √33 आएगा, इसका भी √33 आएगा, और दोनों कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई पे 33 हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? ये कैंसल, अपना cos थीटा आ गया 1। ये तो अपने को प्रूव करना था, cos थीटा 1 आ गया, which implies थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो बस ये प्रूव हो गया कि कोलिनियर है। ठीक है, तो ये तो अपने को प्रूव करना था कि थीटा 0 डिग्री है।
वो मैंने प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ किया? मैं सिंपली दिखा दिया कि मेरा cos थीटा 1 आ रहा है, cos थीटा अगर 1 आएगा तो थीटा 0 डिग्री है, तो कोई नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें क्या इशू है? क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है शो दैट द वेक्टर्स दिस दिस एंड दिस फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस बनाती है, ये अपने को शो करना है। ठीक है, ओके, वी कैन इजीली डू दैट। अपने को वापस वही करना है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में निकालना है, क्या वेक्टर है उसकी लेंथ निकालनी है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में वेक्टर निकालना, फिर उसकी लेंथ निकालनी है, फिर बाकी मतलब तीनों की लेंथ निकालनी है बेसिकली। अब फिर अपन लोग के पास आ जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, वही अपने को शो करना है। ठीक है, तो अपन लोग लिखते हैं, मैं 3 वेक्टर लिख लेता हूँ और 3 वेक्टर का नाम, एक का नाम देता हूँ ए वेक्टर। उसको मैं कैसे लिखूंगा? किसी भी दो को उठा के आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो। लेट्स से 2 - 1 आई कैप, 2 - 1 आई कैप, then -1 minus of -3 मतलब +2 j cap plus 2 j cap, then 1 -5 plus 6 k cap। ठीक है, तो ये तो आ गया मेरा ए वेक्टर। देन बी वेक्टर लेट्स से मैं निकालता हूँ, दूसरे का नाम मैं बी देता हूँ। मैंने पहले दो के बीच में इंटरेक्शन लिख लिया, मैं सेकंड और थर्ड के बीच में लिख लेता हूँ। तो 3 - 1 is 2 i cap। मैं दोनों में से किसी को भी उठा कर सकता हूँ, अल्टीमेटली फर्क माइनस का ही आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 - 1 2, देन -4 प्लस 3 -1 हो जाएगा, माइनस जे कैप बेसिकली, एंड देन -4 + 5 मतलब प्लस के कैप। ठीक है, तो ये आ गया मेरा बी वेक्टर। देन आई हैव टू कंप्यूट सी वेक्टर, तो मैं सी वेक्टर भी कंप्यूट कर लेता हूँ। जो मेरा सी वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? मेरा सी वेक्टर आ जाएगा, अब फर्स्ट सेकंड हो गया, सेकंड थर्ड हो गया, बस थर्ड और फर्स्ट बचा है। तो 3 - 2 is 1, तो सिंपल आई कैप, देन -4 + 1 is -3 j cap, -3 j cap, then -4 - 1 is equal to -5 k cap। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। अपन लोग इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर, कितना हो रहा है ये हो रहा है √1 + 4 + 36, तो ये हो जाएगा √41। ठीक है, सॉरी √41, सही कर देते हैं, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √41। ठीक है, देन सिंपली मैं वैसे ही बी वेक्टर का मॉड भी निकाल लेता हूँ। बी वेक्टर का मॉड कितना आ रहा है? बी वेक्टर का आएगा √4 + 1 5 + 1 6, तो आ जाएगा √6। ठीक है, सिमिलर वे में रूट मॉड ऑफ सी भी निकाल लेता हूँ। मॉड ऑफ सी कितना आएगा वो भी मैं देख लेता हूँ। लेट्स से मॉड सी वेक्टर, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 + 9 10, 10 + 25 35, तो बेसिकली ये आ रहा है √35। तो अब तो ऐसा आपको दिख गया होगा कि सी का स्क्वायर + बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ सिंस मॉड सी स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर। इसका मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये प्रूव हो गया। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सिंस दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड सच दैट mod c square plus mod b square plus is equal to mod a square, since this is satisfied, तो अपन लोग बोल सकते हैं इसमें अपन लोगों ने पाइथागोरस लगा दिए, तो इसका मतलब hence we have proved that this is a right angle triangle। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन ही था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है? A vector is a non-zero vector of magnitude A and lambda is a non-zero scalar। Okay, then lambda A vector is a unit vector। अच्छा, आपने को बोला है कि A वेक्टर एक नॉन जीरो वेक्टर है और जिसका मैग्नीट्यूड A है, अपने को बोलना है और बोला है कि लैम्डा एक नॉन जीरो स्केलर है। तो अपने को बोला है कि लैम्डा A यूनिट वेक्टर किस केस में होगा? अगर लैम्डा 1 होगा तब तो फिर लैम्डा A वेक्टर क्यों जाएगा, और A वेक्टर का मैग्नीट्यूड A है 1 नहीं है, तो ये वाली केस तो हो नहीं सकता। लैम्डा -1 होगा तो भी वही बात है,
लैम्डा माइनस वन होगा तो भी वही बात है, माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड तो ए रहेगा, वो तब भी वो यूनिट वेक्टर नहीं बनेगा। अगर ये लैम्डा होगा तब तो फिर ये लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, फिर भी वो यूनिट वेक्टर नहीं बनेगा, क्योंकि लैम्डा जरूरी थोड़ी है कि वन हो। फिर अगर ए वन बाय मॉड लैम्डा होगा तब बन जाएगा, क्योंकि लैम्डा इंटू वन बाय मॉड लैम्डा हो जाएगा वन, अपने को वन जो चाहिए मैग्नीट्यूड। बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। तो ये तो सीधे सीधे ओरिजिनल क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। क्यों? वन बाय मॉड लैम्डा, बिकॉज वन बाय मॉड लैम्डा मल्टीप्लाई, ये होगा मैग्नीट्यूड, मॉड लैम्डा ए है और ये लैम्डा तो भाग दिया हुआ है, तो बेसिकली ये और ये कट जाएगा और अपना मैग्नीट्यूड बना जाएगा। ये जो अपने को शो करना था, इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? इसका सही ऑप्शन हो गया डी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 18 वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आई गेस वी हैव लेफ्ट क्वेश्चन नंबर 13 इन आवर लास्ट क्लास, सो उसको भी देख लेते हैं। उसमें क्या बोला है? ए बी एन सी आर यूनिट वेक्टर्स दिए हुए ए बी एन सी, मतलब मेरे को दिया हुआ है कि मॉड ए मॉड बी मॉड सी वन है। ठीक है, व्हाट वी आर गिवन मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है, मतलब ऑब्वियस सी बात है वेक्टर्स ही हैं, आपको ये लगाना पड़ेगा वरना मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, फिर अपने को क्या बोला है? फिर अपने को बोला है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। हाँ, तो ये कंडीशन दी हुई है अपने को। फिर अपने को बोला है कि अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की। ठीक है, इसको कैसे करें हम? चलो निकालते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो प्लस सी वेक्टर is equal to zero vector. So it's like doing it like that. Let's say we take dot with a vector for the whole vector. So what we will get a vector dot is equal dot a vector plus b vector plus c vector. A vector plus b vector plus c vector जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर किसी भी डॉट लेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए डॉट ए जो कि वन होगा, वन प्लस ए डॉट बी, वन प्लस ए डॉट बी सॉरी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ठीक है, सिमिलर वे में हम लोग बी वेक्टर के साथ सी वेक्टर के साथ भी डॉट ले लेंगे, तो अपने को क्या मिलेगा? अपने को मिलेगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी वापस वन हो जाएगा, क्योंकि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन है, तो प्लस बी डॉट बी वन हो जाएगा, तो प्लस वन प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। किसी वेक्टर का मॉड में, किसी वेक्टर का डॉट में जीरो वेक्टर लूंगा तो जीरो वेक्टर ही आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आ गई। सिमिलरली मैं सी के साथ भी ले लूंगा, क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो ये मेरे पास तीन इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं काम करता हूँ, मेरे पास तीन इक्वेशन आ गई, अब मैं लेट्स से तीनों को ऐड करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा टू टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। अब यहाँ पे वेक्टर्स आने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है।
vector, 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 and vector. Okay. So this thing plus 3 is equal to 0 vector. So ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इक्वल टू 0 वेक्टर, मतलब 0, क्योंकि मैंने बेसिकली अब डॉट ले लिया है, तो एक्चुअली में 0 नहीं था, 0 दिया हुआ था। कहाँ गया? क्योंकि मैंने 2 वेक्टर डॉट ले लिया ना, तो इनके ऊपर से वेक्टर से ये वेक्टर हट जाएगा, तो ये वेक्टर यहाँ से हटा दो। क्योंकि मैंने 2 चीज मैंने बताया था, जब मैं डॉट लेता हूँ तो मेरा वेक्टर स्केलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये वेक्टर हट जाएगा और यहाँ पे +3 बचेगा, उसको मैं ले जाता हूँ, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आके -3। ठीक है, तो बस अब मुझे मेरा आंसर मिल गया। क्या हो गया आंसर? आंसर हो गया -3/2। सो दिस थिंग इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, ये तो मुझे निकालना था, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए कितना है, तो मैं निकाल लिया, दिस थिंग इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, तो एक्चुअली में टफ नहीं था, बस अपने को ये सोचना था कि अपने को इसमें जो अपने को इक्वेशन दी हुई है, ये मास्टर इक्वेशन बोलते हैं इसको, इसको अपने को एक बार ए के साथ डॉट लेना है, एक बार बी के साथ डॉट लेना है, एक बार सी के साथ डॉट लेना है। उससे 3 इक्वेशन आएगी, तीनों को ऐड किया तो ये ए डॉट बी 2 बार आ रहा था, बी डॉट सी 2 बार आ रहा था, ए डॉट सी 2 बार आ रहा था, वो तीनों को मैंने 2 बार लिखा, मतलब 2 टाइम्स लिखा, और +1 को मुझे लेकर तो -3 हो गया, फिर ये -3/2 आ गया। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। इट वॉज अ डैम इजी एक्सरसाइज, बाकी अपन लोग प्रैक्टिस करेंगे तो अपने को और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्रॉस प्रोडक्ट नाउ। सो व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट is basically nothing but A cross B, which is equal to A cross B, A cross B। ठीक है, जब हम 2 वेक्टर्स आपस में क्रॉस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है? दिस थिंग इज इक्वल टू mod A, mod A, mod B, साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका साइन। ठीक है, सो साइन थीटा टाइम्स एन कैप, times n cap. What is n cap? N cap is a unit vector which is perpendicular to both A vectors and B vectors. See here, this thing I written. What is this? Here mod A is nothing but magnitude of A vector, mod B is nothing but magnitude of B vector, and sin theta is the angle between these two vectors, and उसका sin। और n cap क्या है? n cap is a unit vector in a direction which is perpendicular to the both, मतलब A vector और B vector दोनों के perpendicular जो डायरेक्शन है, उसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको मैंने बोला n cap। ठीक है, तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का रिप्रेजेंट करते हैं। देन सो वापस वही है, साइन थीटा का 0 होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। जब मेरा साइन थीटा 0 होगा, साइन थीटा सॉरी, तो फिर मेरा क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। और साइन थीटा 0 कब होता है? साइन थीटा 0 होता है थीटा इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो मतलब क्या है, अगर 2 वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल 0 है, मतलब वो सेम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, या 2 वेक्टर्स ऐसे भी जिनका बीच में एंगल 0 है, सेम डायरेक्शन में अलाइंड है, तो उस केस में उनके बीच में एंगल 0 होगा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो कभी अपने को निकालने को बोला गया कि टेल वेदर दीस टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल और समथिंग लाइक दैट, जिसमें ये बात कर दी है कि बीच में एंगल 0 आ रहा हो, तो अपन लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। इफ क्रॉस प्रोडक्ट इज कमिंग आउट टू 0 देन वी आर इन द राइट डायरेक्शन, अदरवाइज नॉट। ठीक है, फिर अब इसको जो भी मैंने बोला, आई क्रॉस आई, जी क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 0, इन दोनों के बीच में एंगल 0, इन दोनों के बीच में एंगल 0, और एंगल 0 साइन 0 0, इसलिए अपन आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 वेक्टर आते हैं। वहीं अगर अपन लोग डॉट लेते हैं तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के आएगा 1, क्योंकि मैं आपको बताया था cos 0 1 होता है इसलिए। ठीक है, और वहीं अपोजिट एक साइकिल वैसे भी चलती है, एक ऐसे करके साइकिल चलती है। इसमें क्या, मान लो आई वेक्टर आपके यहाँ पे, दिस इज आई वेक्टर, this is your let's say j vector, and let's say this is your k vector यहाँ पे। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, अपन लोग इसी ऑर्डर में चलते हैं तो अपना हमेशा सही रहेगा। मतलब i क्रॉस j, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो हमेशा में जो मेरा i क्रॉस j होगा वो बराबर होगा k कैप के, दिस थिंग इज इक्वल टू k कैप। ठीक है, देन j क्रॉस k इज इक्वल टू i कैप, j क्रॉस k is equal to I cap,
एंड के क्रॉस आई इक्वल टू माइनस जे, ठीक है। अगर आप हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलोगे तब तो फिर आपके सारे आंसर सही आएंगे, और जब जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज हो गए वैसे ही आपके जो आंसर आएंगे उसमें एक माइनस साइन इंक्लूड हो जाएगा। मतलब जैसे कि के क्रॉस आई तो माइनस जे है, के क्रॉस आई तो जे है, सॉरी, के क्रॉस आई इज जे। क्यों? क्योंकि आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। वहीं अगर आप लोग करते हैं आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के एंटी क्लॉक जाते हैं तो उस केस में अपना आंसर आता है माइनस जे। इसमें एक और चीज, प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, प्रोडक्ट में एक नेगेटिव साइन आता है, मतलब आई क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस जे क्रॉस आई, ठीक है। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे का जो वेक्टर होता है नहीं है, और ये वेक्टर प्रोडक्ट है, इससे फाइनल रिजल्ट भी वेक्टर आता है। डॉट प्रोडक्ट करके तो फाइनल रिजल्ट एक स्केलर आता, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट करके वेक्टर ही आता है। दिस थिंग इज इक्वल टू माइनस टाइम्स जे क्रॉस आई, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। हाँ, इसमें फिर अपने साइन थीटा निकालेंगे तो उसमें कॉस थीटा निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू, वही करेंगे, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मॉड, क्योंकि अपने को एन कैप नहीं चाहिए ना, ए क्रॉस बी वेक्टर ही है तो अपने को एन कैप हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए ए क्रॉस बी का मॉड लेना पड़ेगा, डिवाइड बाई मॉड ए मॉड बी, ठीक है। मॉड ए मॉड बी, अपन लोग ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसे करके अपन लोग दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से। देन और इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया, अगर ये एंटी क्लॉक देंगे तो एक नेगेटिव साइन इंड्यूस हो जाएगा। बाकी एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपको फॉर्मूला पता ही होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ टाइम्स मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसे करके अपन लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, या फिर अपन लोग इसको हाफ ए बी साइन थीटा भी बोल सकते हैं। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, अगर आपको ट्रायंगल एरिया निकालना हो तो अपन सीधे कर लेंगे हाफ टाइम्स ए क्रॉस बी, ठीक है, उसका मॉड, तो वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको सीधे सवाल बनते हैं तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर फिर आगे चलते हैं। These are the questions itself. So let's move to exercise now. Exercise 10.4. 10.4. ठीक है, तो अब इसको करते हैं। Okay, let's start with the first question. क्या बोला है? ए क्रॉस बी निकालना है सिंपली, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या होता है? और इसमें एक चीज और थी जो आप उसमें शायद दी नहीं है, हाँ दी है ना, ठीक है। जो ए क्रॉस बी होता है ना, वो निकालते कैसे हैं वो मैं आपको, उसमें ए डॉट बी निकालते हैं कैसे, मैंने आपको बताया था ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। ऐसे ही ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको नहीं बताया। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, क्या करेंगे अपन लोग, एक मैट्रिक्स लेंगे, बेसिकली डिटरमिनेंट लेंगे, सॉरी, वो होगा आई कैप जी कैप के कैप का, मतलब दिस थिंग इज आई कैप, दिस थिंग इज जे कैप and this thing is k cap. Okay, then what we will do, we will take a1 b1 a1 a2 a3 on the second row, a1 a2 a3 on the second row, and b1 b2 b3 on the third row, and then we will compute the determinant, and this is our value of a cross b, मतलब a cross b की मॉड की वैल्यू, मॉड की नहीं मतलब वेक्टर की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन में हो जाएगा आई कैप जे कैप एंड देन के कैप, ठीक। यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1 minus 7 7 1 minus 7 then 7 and then finally 3 minus 2 2 3 minus 2 and then 2। ओके, सो इसको कंप्यूट करते हैं ओपन, क्या आएगा? ये आएगा -14 + 14 मतलब 0। तो आई कैप का कॉम्पोनेंट तो आएगा नहीं, माइनस जे कैप, बीच में माइनस आता है ना, मैंने आपको बताया था,
0 I cap minus j cap times 2 minus 21 that is equal to minus 19. Basically 19 j cap हो जाएगा वो, plus k cap times minus 2 plus 21 that is equal to 19. ठीक है, तो बेसिकली ऐसा सिस्टम बनेगा अपना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माइनस 14 प्लस 14 जीरो हो रहा था, तो बेसिकली जो मेरा आई ए क्रॉस बी का मॉड आएगा वो आएगा रूट ऑफ 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 19 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 रूट 2। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है। सिंपली सिर्फ अपने को डिटरमिनेंट निकालना है एंड देन वी कैन इजीली कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्रॉस। फिर अगले में बोला फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो मैंने आपको बताया जो a प्लस बी और a माइनस बी करके जो क्रॉस करके जो वेक्टर आता है एन कैप, उन दोनों के परपेंडिकुलर आता है। तो बेसिकली अपने को इन दोनों का क्रॉस करना है, और क्रॉस करने के बाद जो आंसर आएगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना ताकि वो यूनिट वेक्टर बन जाए। ठीक है, तो पहले अपने को करना है a प्लस बी और a माइनस बी का क्रॉस। पहले मुझे निकालना पड़ेगा a प्लस बी माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का मुझे क्रॉस करना है। तो चलो मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, इसको ऐसे करते चलो, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। ठीक है, हाँ ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव होती है अगर आपको नहीं पता हो तो। ठीक है, बेसिकली मुझे ये करना है फर्स्ट स्टेप में। तो कैसे करूंगा, इसको लिख सकता हूँ a क्रॉस ए हो जाएगा 0, मैंने आपको बताया था, माइनस a क्रॉस बी जो पहले होगा वो पहले लिखा जाएगा। ठीक है, a क्रॉस ए 0 हो जाएगा, माइनस a क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए, प्लस बी क्रॉस ए आ रहा है, प्लस बी क्रॉस ए मिल सकता हूँ माइनस ए क्रॉस बी। मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग ऑर्डर चेंज कर देंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस ए क्रॉस बी और फिर तो आखिरी वाला जीरो होगा क्योंकि बी क्रॉस बी बन रहा है। तो बेसिकली कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस 2 टाइम्स ए क्रॉस बी, माइनस 2 टाइम्स ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, ये वैसे निकालेंगे आई कैप जे कैप के कैप, देन आई कैप के नीचे आएगा 3 2 2, सॉरी आई जे कैप के नीचे 3 2 2 एंड बी वेक्टर कितना है 1 2 माइनस 2 1 2 माइनस 2। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 माइनस 8 आई कैप, -8 आई कैप, देन -6 -2 -8 जे कैप, and then 6 -2 4 plus 4 k cap plus 4 k cap। ठीक है, एक मिनट बीच में माइनस बचाएगा यहाँ पे, -6 -2 -8 आएगा, हाँ तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा, मैंने बोला ये जो वेक्टर होता है ये होता है एन कैप की डायरेक्शन के अलॉन्ग, मतलब ए क्रॉस मतलब इन दोनों वेक्टर के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो ये आएगा, and then we are asked to calculate unit vector, so we will basically divide it by its magnitude। so मेरा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर इज -8 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 4 के कैप डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 64 प्लस 64 128 प्लस 16 128 प्लस 16 144।
144 का अंडर रूट, 144 का अंडर रूट वैसे तो पता है अपने को, लेकिन फिर मैं लिखता हूँ 144 का अंडर रूट, ये होता है 12. सो लेट मी राइट इट डायरेक्टली हियर ओनली. ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा. आई होप समझ में आया होगा. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले तो ए प्लस बी कैलकुलेट किया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, बाद में ए प्लस बी आया उसको मैंने उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया एंड आई एम इजली गेटिंग द यूनिट वेक्टर. ठीक है, देन मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है if a unit vector makes angle pi by 3 with I cap, pi by 4 with J cap, right angle theta with K cap, find theta. नो थीटा निकालना है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर. ओके, तो बेसिकली मुझे दिया हुआ है कि जो मेरा ए वेक्टर है उसका जब मैं डॉट करूंगा ए वेक्टर का जब मैं डॉट करूंगा आई कैप के साथ, तो देखो ए वेक्टर जब मैं डॉट करूंगा आई कैप के साथ मुझे क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा सिर्फ आई वाला कंपोनेंट. जैसे कि मान लो कि मेरा ए वेक्टर दिया हुआ है कुछ ऐसे, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ. लेट्स से माय ए वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ठीक है, तो जब मैं इसको वेक्टर का डॉट करूंगा आई के साथ तो आई डॉट आई तो बन जाएगा, तो फिर एक्स वाला कॉम्पोनेंट आ जाएगा, लेकिन बाकी सारे जीरो जाएंगे. जे डॉट आई इज जीरो एंड के डॉट आई इज जीरो. ए डॉट आई इज बेसिकली एक्स कॉम्पोनेंट. ठीक है, तो ए डॉट आई कितना आएगा? ए डॉट आई इज इक्वल टू एक्स वाला कॉम्पोनेंट. ठीक है, हमको क्वेश्चन में क्या बोला? मेरे को बोला है कि यूनिट वेक्टर ए, अच्छा ए वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है, तो ए डॉट आई है एक्स कॉम्पोनेंट और इसके बराबर है, ये बराबर होगा मॉड ए विच इज 1 mod I which is also 1 and multiply by cos of angle between them which is pi by 3. So cos pi by 3 is cos 60 which is equal to half. So x कितना आ गया? Half. ठीक है, similar way में I will do with a vector dot j cap. इससे क्या होगा? इससे मुझे मिल जाएगा y वाला component, इससे मुझे मिल जाएगा y वाला component. This thing is equal to y which is equal to again mod a1 mod j1 multiplied by cos of angle between them which is pi by 4, so 1 by 2. ठीक है, उसके बाद सेम विद जेड कैप, तो अपने को एक्यूट एंगल थीटा बोला है विद जेड कैप, तो बेसिकली ए डॉट के कैप is equal to z component is equal to cos theta. ठीक है, मैं cos थीटा कैसे निकालूंगा? थीटा कैसे निकालूंगा? बेसिकली मैंने एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट निकाल लिया, मेरे को बोला है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो बेसिकली मुझे बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 1. ठीक है, तो बेसिकली 1 by 4 प्लस 1 by 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो माइनस में कितना ले आओ इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा मुझे दिया हुआ है थीटा एक्यूट एंगल है. ठीक है, तो कितना हो जाएगा? दिस थिंग इज इक्वल टू 2 by 4 3 by 4, बेसिकली 3 by 4 minus 1 is minus 1 by 4. ठीक है, now I think there is some error again. 1 by 4 plus half is 3 by 4. Okay. Then what we have did something wrong, I guess. Cos pi by 3 is half, cos pi by 4 is 1 by 2, and the square is okay, 1 by 4 plus 1 by 2, 3 by 4, minus 1 is equal to cos square theta. तो अपना cos square theta आ रहा है minus 1 by 4. How is it possible?
ओके ओके, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो देखा ही नहीं। तो यहाँ से ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। बेसिकली अभी प्लस हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा वहां जाएगा तो वहां पे भी तो माइनस आएगा, तो बेसिकली कॉस थीटा आ रहा है अपना हाफ। सो थीटा कितना आ रहा है, थीटा सेकेंड कॉस थीटा हाफ किस एंगल पे आता है, पाई बाई 3 पे, ठीक है। तो थीटा तो आ गया अपना पाई बाई 3, मुझे निकालना था। तो मुझे बोला है कि कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, तो वो आ गया 1/2 1/2 और cos पाई बाई 3 सेकेंड 1/2। तो बेसिकली कॉम्पोनेंट्स क्या हो गए, कॉम्पोनेंट्स होगा 1/2 कॉमा 1/√2 1/√2 कॉमा 1/2, cos पाई बाई 3 वापस 1/2 हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, show that this thing is equal to 2 times a cross b, ये मैंने अभी इसी में दिखाया था क्वेश्चन नंबर सेकंड में। so this is the same question, so I am not doing it. Let's move to question number fifth now. question number fifth में क्या बोला है, find lambda in mu such that this thing is equal to zero vector। तो करते हैं इसको, कैसे लिखेंगे, i j के i वेक्टर j वेक्टर k वेक्टर k कैप एक्चुअली, सॉरी सब ऊपर कैप है, 2 6 27 2 6 27 और फिर क्या दिया हुआ है, 1 लैम्डा म्यू 1 लैम्डा इन म्यू, ये दिया हुआ है 0 वेक्टर के बराबर, मतलब 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप में, मतलब मेरे को आई का कॉम्पोनेंट भी 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, जे का भी और के का भी। बेसिकली आई का कितना आएगा, आई का आएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, 6 म्यू माइनस 27 lambda is equal to 0. This is my first equation. And then for j cap, 2 mu minus 27. 2 mu minus 27 is equal to 0. So basically 2 mu is equal to 27. This is my second equation. तो यहाँ से अपने पास mu आ जाएगा 27/2. Mu is coming out to be equal to 27/2. ठीक है, देन 27/2 में इसमें डाल दूंगा, मेरे को इसकी वैल्यू मिल जाएगी। बेसिकली मेरे पास कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे के वाला कंपोनेंट जीरो कर सकता हूँ। बेसिकली मैं बोल रहा हूँ 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा लैम्डा, यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 3, ठीक है। तो मेरा म्यू आके 27/2 और लैम्डा आ गया 3। इन दोनों आप इसे क्वेश्चन डाल के चेक भी कर लो, आपको सही ऑप्शन, आपको सही आंसर आ जाएगा। 27 3 6 और यहाँ पे 27 से, तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वाज अ इजी क्वेश्चन आई गेस। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, a डॉट b a क्रॉस b 0 दोनों दिए हुए हैं, तो cos थीटा भी 0 है, sin थीटा भी 0 है, तो पॉसिबल नहीं है, तो बेसिकली मॉड और मॉड b में से कोई एक 0 होगा। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट वेक्टर्स, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, देखो a डॉट b 0 है, तो क्या तो इसमें 3 केस होंगे, तो मॉड भी 0 हो सकता है, या मॉड भी 0 हो सकता है, या a और b परपेंडिकुलर हो सकता है। a क्रॉस b भी 0 है, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है मॉड भी 0, मॉड भी 0, या a और b आपस में पैरेलल हो। लेकिन उसमें बोला परपेंडिकुलर, उसमें बोला पैरेलल, दोनों केस हो सकते हैं, तो ये दोनों कंडीशन अपने यहाँ पड़ गई। मतलब इसका आंसर क्या है, इसका मतलब ये होगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में से कोई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा, तभी ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको तो हम लोग इजीली रिड्यूस कर सकते हैं, दिस मीन्स दैट आइदर ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड 0 होगा, ठीक है। इन दोनों में से कंडीशन होगी तभी जाके पॉसिबल है, क्योंकि cos थीटा sin थीटा आपस में एक साथ नहीं सकता, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। Then moving to 7th, let the vectors a, b and c this and this, then show that a cross b plus c is a cross b plus a cross c। अच्छा, इसमें तो अपने को दिखाना है, उसमें तो अपने को खुद दिखाना पड़ेगा, ये एक्चुअली में बहुत लंबा जाएगा, बट कर लेते हैं इसको। हम आई जे के, तो ये क्या हो जाएगा a1 a2 a3 b1
B2 बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको एक पार्ट में दिखाता हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लेना। B1 B2 B3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आई कैप टाइम्स A2 B3 माइनस A3 B2, A2 B3 A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस J कैप टाइम्स A1 B3 माइनस A3 B1 A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस K कैप टाइम्स A1 B2 माइनस B1 A2 A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने निकाल लिया मेरा A क्रॉस B। सिमिलर वे में निकाल लूंगा मेरा A क्रॉस C, दोनों को ऐड कर दूंगा, मेरे पास यहाँ पे कुछ आएगा। फिर मैं B प्लस C निकालूंगा, उसका एक क्रॉस कर दूंगा, वहां पे कुछ आएगा। तो अपन जब दोनों चीज करेंगे इसी मेथड से, तो अपने को दोनों बराबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन सिंपल है, बस कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है, तो इससे को आगे प्रोसीड कर लेना। मैंने A क्रॉस B निकाल दिया, सिमिलर वे में आपको A क्रॉस C निकालना, फिर B और C को ऐड कर लेना और फिर उसका एक साथ क्रॉस ले लेना। इसी वे में दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो वी हैव प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 7 मतलब A क्रॉस B प्लस C इज A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, मतलब ये आपस में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, इसको अपन ने आगे ऊपर यूज भी किया था, बस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या किया हुआ है, A वेक्टर B वेक्टर इज 0 है, देन A क्रॉस B 0 का ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मॉड A मॉड B में से कोई 0 हो जाएगा। इज द कन्वर्स टू, कन्वर्स टू नहीं है। कन्वर्स टू क्यों नहीं है, ये अपन ने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था, क्योंकि हो सकता है कि साइन थीटा 0 हो जाए, मतलब ये हो सकता है ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाए। तो दिस कंडीशन, दिस कन्वर्स इज फॉल्स, कन्वर्स is false. Why? Because sin थीटा भी तो 0 हो सकता है ना, sin थीटा उसमें cos थीटा 0 हो सकता था, स्केलर प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था। Because sin थीटा इक्वल टू 0 is also a probability। ठीक है, इस केस में जरूरी नहीं है कि फिर मॉड A मॉड B 0 हो, अगर दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हो गए तो भी A क्रॉस B 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली साइन थीटा इक्वल टू 0 ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैं इसको पक्के से नहीं कह सकता कि A और B में से कोई एक 0 होगा। हो सकता है कि हो, और अगर साइन थीटा 0 हो गया तो फिर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, रियली हो जाएगा यहाँ भी। फिर 9th पे चलते हैं। 9th में बोला फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ टाइम्स मॉड ऑफ A क्रॉस B, मॉड ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, तो ये करना है अपने को, करते हैं। अब पहले मेरे को A क्रॉस B निकालना पड़ेगा। तो मान लो मेरा ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ है, लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। तो A क्रॉस B निकालना है, तो मान लो ये है मेरा A वेक्टर, ये वाला, और मान लो ये है मेरा B वेक्टर। हमेशा कॉन्टिन्यूअस साइड लेनी है, मतलब इसमें तो तीनों कॉन्टिन्यूअस होगी। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये वाला वेक्टर निकालता हूँ, ये वाला वेक्टर निकालता हूँ पहले। तो पहले तो मुझे ये वेक्टर निकालना पड़ेगा। ये वेक्टर कितना आएगा, A के कॉम्पोनेंट्स माइनस B के कॉम्पोनेंट्स। तो A के कॉम्पोनेंट्स कितने हैं, चाहे एडजेसेंट साइड से दी हुई है क्या, नहीं, अच्छा मैं नहीं चाह कर रहा हूँ ना, क्योंकि 10th में मुझे एडजेसेंट साइड से दी हुई है, करना ही नहीं है। इसमें करते हैं पहले 1 minus 2 is minus I cap, then 1 minus 3 is minus 2 j cap, minus 2 j cap, then 2 minus 5 is minus 3 k cap, minus 3 k cap। ओके, सिमिलर मैं B वाला वेक्टर भी निकाल लूंगा, वो हो जाएगा कॉम्पोनेंट्स ऑफ C माइनस कॉम्पोनेंट्स ऑफ B, क्योंकि मेरा वेक्टर C की तरफ है इसलिए। तो 1 minus 2 is minus I cap again, then 5 minus 3 is plus 2 j cap, plus 2 times j cap, and finally 5 minus 5 is 0, तो 0 k cap हो जाएगा, मतलब नहीं है। तो अब मैं बेसिकली एक क्रॉस B निकालता हूँ, I
जे के -1 -2 -3 -1 -2 -3 then -1 2 0 -1 2 and then 0। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ आई कैप के नीचे आएगा 6, क्योंकि -6 और एक माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बेसिकली आ जाएगा 6 आई कैप, फिर माइनस जे कैप आएगा, लेकिन ये 0 हो जाएगा, -3, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस जाएगा, बेसिकली +3 जे कैप, +3 जे कैप। या आप लोग अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। प्लस के कैप में क्या आएगा, -2, बेसिकली -4 के कैप, बेसिकली -4 के कैप आएगा। ठीक है, तो इसमें अपन कैसे कर सकते हैं, इसमें अपन लोग बोल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √36 + 9 45 45 + 16 55 61, तो बेसिकली ये आ जाएगा √61, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जाएगा √61/2। ठीक है, √61/2। आई होप ये आंसर आना चाहिए, लेट मी चेक वंस। यस, दिस इज द राइट आंसर। तो बेसिकली करना क्या है, करना वही है, अपने को ए वेक्टर बी वेक्टर निकाल के ए क्रॉस बी करना है, उसका मॉडल देना है, उसको हाफ डिवाइड करना है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन आई गेस। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10th पे। 10th में बोला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय दिस एंड दिस। और अपने को इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल एकदम सिमिलर चीज है, तो इसमें अपने को ए क्रॉस बी करना है, हाफ से डिवाइड नहीं करना है, और इसमें तो अपने को ए और बी दिया हुआ ही है, बेसिकली अपने को ए क्रॉस बी निकालना है। तो मैं इसको निकाल के बताता हूँ, मतलब मैं सीधे आंसर कर रहा हूँ कि ए क्रॉस बी कितना आ रहा है मेरे पास, वो ए क्रॉस बी करेंगे अपन लोग, तो मेरे पास ए क्रॉस बी आ जाएगा। वैसे ये तो मैं कर चुका हूँ, मैं वापस क्यों ही कर रहा हूँ, बट ठीक है। 20 + 5 - 5 मतलब 20 आई कैप, या आप लोग कर लेना, +5 जे कैप -5 के कैप। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ए क्रॉस बी आएगा, इसका मैं मॉड ले लूंगा, तो वो जाएगा 400 + 25 + 25, तो वो आ जाएगा समथिंग अराउंड 15√2। तो ये हो जाएगा मेरे एज ऑफ पैरेललोग्राम। मुझे कुछ भी √2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस वो तो मुझको साइड्स भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को ये और भी दिया हुआ था कि एडजेसेंट साइड्स से। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 10th भी हो गया, फेयरली सिंपल। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 पे। हम ए बी का मॉड दिया हुआ है, देन ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, अगर उन दोनों के बीच में एंगल कितना है बोला है। ठीक है, देखो ए क्रॉस बी का मेरे को मॉड बन दिया हुआ है, बेसिकली मेरे को बोला है कि ए क्रॉस बी का मॉड बने, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर मॉड बन जाएगा। बेसिकली ए क्रॉस बी का मॉड है 1, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड है इंटू मॉड बी, मतलब 3 × √2/3, मतलब √2 इंटू दोनों के बीच में एंगल का साइन, मतलब साइन थीटा, √2 साइन थीटा। क्योंकि मॉड लिया तो एन कैप हट जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो यार है 1, मतलब ऐसे मेरा साइन थीटा आ रहा है 1/√2, मतलब साइन थीटा 1/√2 किस एंगल पे होता है, थीटा इक्वल टू π/4 पे, मतलब 45 डिग्री। तो अगर इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल π/4 होगा, तब तो ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब सही आंसर क्या हो गया, बी पार्ट। तो बी पार्ट इज माई राइट आंसर। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, इसलिए बहुत जल्दी हो रहे हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोला है, इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, जिसमें वर्टिकल दिए हुए हैं ए बी सी डी। वापस वही सिंपल क्वेश्चन है, ए बी सी डी दिया हुआ है, आप कोई भी दो साइड निकाल लो, ए बी बी सी, और फिर दोनों का मॉड कर दो। तो लेट्स से मैंने एक साइड निकाली ए बी क्या होगा, ए बी होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो 1 - -1 is 2 i cap, 2 i cap, देन हाफ जे कैप माइनस हाफ जे कैप 0 हो जाएगा, +4 - 4 0 हो जाएगा, तो ए बी वेक्टर तो 2 i कैप ही आ गया। और ये कैसा रेक्टेंगल होगा, इस टाइप से रेक्टेंगल होगा। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो बेसिकली मुझे एडजेसेंट साइड चाहिए होती है, तो एक होगा ए बी वेक्टर जो मैंने निकाल लिया बी माइनस ए करके, और एक मैं निकालूंगा डी ए वेक्टर। सी ए वेक्टर में निकालना होगा, गड़बड़ हो जाएगी, नाम से मिलता जाएगा।
तो मैं निकालूंगा दूसरा वेक्टर ईडी वेक्टर, जो कि होगा डी के कॉम्पोनेंट्स माइनस ए के कॉम्पोनेंट्स, मैंने आपको बताया जिससे वैल्यू हो जाता है माइनस माइनस करते हैं। तो डी के कॉम्पोनेंट्स -1 + 1 हो जाएगा, -½ -½ 1 हो जाएगा, मतलब -j कैप, और फिर +4 -4 0 हो जाएगा। बेसिकली ए बी और ई डी आ रहा है, तो इसमें तो मेरे को वो पूरा करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ ए बी वेक्टर क्रॉस ई डी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्रॉस ई डी वेक्टर कितना आएगा, दिस थिंग इज इक्वल टू आई क्रॉस जी होता है की कैप, मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एक माइनस तो माइनस रह ही जाएगा। बेसिकली आ रहा है -2 k कैप, और मेरे को चाहिए इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये है तो रेक्टेंगल एट द एंड है तो पैरेललोग्राम ही, तो जो इसका क्या बोलते हैं एरिया आएगा वो आएगा इसका मॉड, मतलब इसका मॉड, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2²। तो बेसिकली जो मेरा आंसर है वो है मेरा सी पार्ट इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से वाली एक्सरसाइज हो गई है। बाकी मिसलेनियस एक्सरसाइज अपन लोग अपने अगले सेशन में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो ये वाली एक्सरसाइज कितनी अपन ने जल्दी कर ली, देखो इट इज दैट सिंपल। देखो वेक्टर वाला चैप्टर बहुत सिंपल है, अपन ने अगर इसकी पकड़ में आ रही तो मैथ्स में कि ये चैप्टर इस पर अपन लोग पूरे में पूरे में ला सकते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। क्रॉस प्रोडक्ट बस स्केलर प्रोडक्ट का एक्सटेंशन था। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि स्केलर प्रोडक्ट करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है वो एक स्केलर आता है, और वेक्टर प्रोडक्ट में फाइनल आंसर भी एक वेक्टर ही आता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट से जो समझ में आए होंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, थैंक यू।